In this video, students, we will solve daily life practical problems with the help of Venn diagrams. So, let's start, student. Question number 1. In a class of 50 students, 30 students like mathematics, 25 like science, and 16 like both. Find the number of students who like either mathematics or science. Second, neither like mathematics nor science. इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 30 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को लाइक करते हैं एंड 25 साइंस को लाइक करते हैं एंड 16 बोथ को लाइक करते हैं, मैथ्स एंड साइंस को। तो आप बताओ ऐसे स्टूडेंट्स के नंबर को जो या तो मैथ्स को लाइक करते हैं या तो साइंस को लाइक करते हैं, एंड सेकेंड में ना तो मैथ्स को लाइक करते हैं ना तो साइंस को लाइक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स we will draw Venn diagram. For this students, we suppose U equal to number of students in a class and M equal to students who like mathematics and S equal to students who like science। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नोटेशंस को सपोज कर लेंगे। We will draw a rectangle for universal set and two circles M and S. First circle represents set of mathematics and second circle represents set of science. This is a common reason. ये common reason है। ये ऐसे स्टूडेंट्स के नंबर को शो करेगा जो बोथ को लाइक करते हैं, दोनों को। और ये रीजन जो है शो करेगा ओनली मैथमेटिक्स को लाइक करते हो, और ये रीजन शो करेगा ओनली साइंस को लाइक करते हो। तो स्टूडेंट्स ये रीजन बोथ को लाइक करता है, तो बोथ को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स के नंबर कितने हैं? 16 लाइक बोथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वी विल राइट कॉमन रीजन। ठीक है, कॉमन रीजन में जो नंबर है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, तो 16 हो गया। फिर देखो 30 स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स। अब आप ये बताओ 30 स्टूडेंट्स मैथ्स को लाइक करते हैं, जिसमें 16 तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिख चुका है क्योंकि ये भी तो मैथ्स को ही लाइक कर रहा है ना। तो 30 माइनस 16 इक्वल टू कितना हो गया? 40। एंड 25 लाइक साइंस, 25 साइंस को लाइक करते हैं, तो ये 16 भी तो साइंस को लाइक करते हैं। तो 25 माइनस 16 9 स्टूडेंट्स। तो ये देखो 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ओनली साइंस को लाइक करते हैं, 14 ऐसे हैं जो मैथ्स को ओनली लाइक करते हैं, और 16 ऐसे हैं जो बोथ को लाइक करते हैं। ठीक है, तो अब इससे देखो नंबर 1 आइदर मैथमेटिक्स और साइंस। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक either mathematics or science equal to number of M union S. It symbolically we can write N in bracket M union S। ठीक है, अब यम यूनियन एस में पूरा रीजन आ गया, ऑल रीजन। तो क्या हो गया? 40 प्लस 16 प्लस 9 इक्वल टू 39। टोटल 39 स्टूडेंट्स लाइक आइदर मैथमेटिक्स और साइंस। सेकेंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स neither like mathematics
nor science. Nor science. Symbolically, we can written as N in bracket M union S dash, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ M यूनियन S, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ U माइनस नंबर ऑफ M यूनियन S. तो नंबर ऑफ U इक्वल टू 50 माइनस 39 इक्वल टू 10 minus 9 11, 4 minus 3, 10 minus 9 equal to 1, 4 minus 3 equal to 1. Total 11 students who like neither mathematics nor science. Right? Second question, students. In an university, out of 100 students, 15 offered mathematics only, 12 offered statistics only, 8 offered only physics, 40 offered physics and mathematics, 20 offered physics and statistics, 10 offered mathematics and statistics, 65 offered physics. By drawing a Venn diagram, find the number of students who, number 1, offered mathematics, number 2, offered statistics, number 3, did not offer any of the above 3 subjects. First of all, students, we suppose U equal to universal set total number of students. Total number of students in an university. Right? And M equal to students who offered mathematics, and S equal to students who offered statistics, and P equal to students who offered physics. U first circle for maths, and second circle for statistics, and third circle for physics. Right? In this question, students, 15 offered mathematics only, 12 offered statistics only, and 8 offered physics only. 40 offered physics and maths both, 20 offered physics and statistics both, 10 offered maths and statistics both, and 65 offered physics. यानी आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स में से 65 जो है फिजिक्स के लिए ऑफर किए हैं. ठीक है. अच्छा, तो ये जो कॉमन रीजन रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ, ये ऐसे स्टूडेंट्स के नंबर्स को शो करेगा जो तीनों को लाइक करते हो. तो ऐसे नंबर्स को देखो इसमें गिवन नहीं है. ठीक है. उसको हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड सच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड ऑल 3 सब्जेक्ट्स. तो फॉर दिस स्टूडेंट्स लेट X be the number of students who offered all 3 subjects.
ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि यक्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑल 3 सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। तो ये नंबर हम लोग का देखो यहाँ हो गया, यानी ऐसे स्टार्ट करते हैं। पहले सारे कॉमन रीजन, ये देखो तीनों का जो कॉमन रीजन है उसको हम फिल किए हैं। अब 2 सब्जेक्ट्स के जो कॉमन रीजन है उसको फिल करेंगे। फिर लास्ट में जो है ये ओनली मैथ्स, ओनली स्टैटिस्टिक्स एंड ओनली फिजिक्स को हम फिल करेंगे। तो आप देखो मैथ्स एंड साइंस कितने ऑफर्ड कर रहे हैं, 15 ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली, 12 ऑफर्ड स्टैटिस्टिक्स ओनली, 8 ऑफर्ड ओनली फिजिक्स, 40 ऑफर्ड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिजिक्स एंड मैथ्स को ओनली ऑफर्ड करते हैं। तो ये 40 और ये माइनस हमको करना पड़ेगा यक्स, क्योंकि यक्स भी तो ऑफर कर रहा है। तो देखो 40 मैथ्स और फिजिक्स को ऑफर कर रहा है, तो ये माइनस कर दिया। ऐसे ही आगे 20 ऑफर्ड फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। देखो फिजिक्स एंड स्टैटिक्स 20, तो 20 माइनस यक्स हो गया क्योंकि ये ऑलरेडी है पहले से। फिर आप देखो 10 ऑफर्ड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, 10, तो 10 माइनस एक्स, राइट। अब आप आ जाओ इस पे 15 ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली, यानी 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ओनली मैथ्स को ऑफर्ड करते हैं, 15, राइट। फिर आप देखो 12 ऑफर्ड स्टैटिक्स ओनली, ये 12 ये ओनली स्टैटिक्स ऑफर्ड करने वालों का हो गया। एंड 8 ऑफर्ड फिजिक्स ओनली, ये 8 स्टूडेंट्स फिजिक्स को ओनली ऑफर्ड करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम यक्स को फाइंड करेंगे। फॉर दिस स्टूडेंट्स वी हैव 65 ऑफर्ड फिजिक्स, ठीक है, इन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में ये गिवन है कि 65 केवल फिजिक्स को ऑफर्ड करते हैं। तो सिंस 65 स्टूडेंट्स ऑफर्ड फिजिक्स, देयरफॉर अब ये देखो फिजिक्स को शो करने वाला ये पूरा रीजन है, तो सम ऑफ ऑल नंबर्स will be equal to 65. So therefore we can written as x plus 20 minus x plus 8 plus 40 minus x equal to 65. ये गिवन है कि फिजिक्स को ऑफर करने वाले टोटल 65 स्टूडेंट्स हैं। तो x एंड x कैंसिल, 20 28, 20 plus 8 28 plus 40 minus x equal to 65, 8 68 minus x equal to 65, x equal to 68 minus 65 equal to 3। तो टोटल 3 हो गया। अब हम फाइंड करते हैं नंबर 1। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who offered mathematics, number of students who offered mathematics। तो क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स को ऑफर करने वाले स्टूडेंट्स, ये टोटल रीजन के नंबर्स होंगे। तो 15 प्लस 10 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स इक्वल टू x एंड x कैंसिल, 15 प्लस 10 25 प्लस 40 माइनस x इक्वल टू 65 माइनस x इक्वल टू 3 इक्वल टू 62। NS इक्वल टू 10 माइनस x प्लस 12 प्लस 20 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स एंड एक्स कैंसिल, राइट, इक्वल टू 10 प्लस 12
22 प्लस 20 माइनस एक्स इक्वल टू 42 माइनस 3 इक्वल टू 39, राइट. नंबर 3 स्टूडेंट्स, did not offer any of the above 3 subjects. एंड ऐसे स्टूडेंट्स को बताना है जो कोई भी 3 सब्जेक्ट्स को ऑफर न करता हो. तो उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who did not offered any of 3 subjects equal to total number of students minus m union s union p इक्वल टू 100 माइनस क्या करेंगे 15 प्लस देखो 10 माइनस एक्स. तो 10 माइनस एक्स इसमें हम वैल्यू ऑफ एक्स पुट करके माइनस कर लेते हैं. तो 10 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 12 प्लस इसमें देखो 20 माइनस 3 करोगे 17 प्लस 8 प्लस 40 माइनस 3 करोगे तो 37, राइट. और फिर लास्ट में ये प्लस 3. तो आप देखिए हमने क्या किया पहले 15 प्लस 10 माइनस एक्स है तो x इक्वल टू 3, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 हो गया ये. फिर ऐसे ही 12 फिर 20 माइनस 3 17 फिर 8 40 माइनस 3 37 प्लस लास्ट में 3 इक्वल टू 100 माइनस ऐड कर दो 15 प्लस 7 22 प्लस 12 34 17 प्लस 8 25 37 प्लस 3 40 इक्वल टू 100 माइनस 4 प्लस 5 9 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9 99 इक्वल टू 1. यानी 1 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो किसी भी सब्जेक्ट के लिए ऑफर नहीं करेंगे. आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, राइट. नंबर 3 स्टूडेंट्स, इन अ ग्रुप ऑफ 400 people 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many can speak both Hindi and English? First of all students, we will draw a Venn diagram. U represent universal set. In a group total 400 people, therefore number of people in universal set 400. First circle and second circle. H denotes the set for Hindi and E denotes the set for English. Let X be the number of people who speak Hindi and English. X हो गया. And 250 can speak Hindi. अब 250 जो है हिंदी स्पीक करते हैं, जिसमें एक्स ऑलरेडी हिंदी स्पीक करता है. ये 250 माइनस एक्स हो गया.
एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, 200 माइनस एक्स हो गया, क्योंकि एक्स ऑलरेडी हम लोग का कॉमन रीजन में है, तो यह हमें माइनस करना पड़ेगा टोटल नंबर में से। फिर आप देखो ये सबका सम किसके इक्वल हो जाएगा, 400, क्योंकि 400 पीपुल हैं, तो सिंस 250 माइनस एक्स प्लस 200 माइनस एक्स इक्वल टू 400, एक्स एंड एक्स कैंसिल, 450, 250 प्लस 200 इक्वल टू 450 माइनस एक्स इक्वल टू 400 और x इक्वल टू 450 माइनस 400 इक्वल टू 50 पीपुल, आंसर राइट। तो 50 पीपुल्स ऐसे हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, इन क्लास 11th of a certain school 50 students eat burger and 40 students eat noodles in lunch time. If 24 students eat both burger and noodles, find the number of students who eat burger only, number 2 noodles only, number 3 any of the two foods items. Let B equal to students who eat burger and N students who eat नूडल्स। बर्गर एंड नूडल्स। इन क्वेश्चन स्टूडेंट्स 24 स्टूडेंट्स ईट बोथ बर्गर एंड नूडल्स, तो दिस रीजन रिप्रेजेंट such type of students who eat both burger and noodles, the 25 4 हो गया, and 50 students eat burger and burger, 50 students, तो 50 minus 24 कितना हो गया 26, क्योंकि ये 24 भी तो बर्गर को जो है ईट करते हैं, and 42 students eat noodles, तो 42 माइनस 24, 42 माइनस 24 18, राइट। नंबर 1, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ईट बर्गर ओनली इक्वल टू, तो देखो ये ऐसा रीजन है जो ये शो कर रहा है, ऐसे स्टूडेंट्स के नंबर को शो कर रहा है जो ओनली बर्गर को क्या कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, तो ये हो गया 26। सेकेंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ईट नूडल्स ओनली इक्वल टू क्या हो गया 18, क्योंकि ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे स्टूडेंट्स के नंबर को जो ओनली क्या करते हैं, नूडल्स को लंच करते हैं। नंबर 3, एनी ऑफ द टू फूड आइटम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ईट any of the two food items equal to n b union n equal to 26 plus 24 plus 18 equal to 8 plus 4 12, 6 18, 8 carry 1 2 2 4 6, 68 students. It is a
solution of this question, right?